اب عالمی منظر کی تفصیلات۔ چین کی جیلوں میں ہزاروں غیر مسلمانوں کے ذہنی خیالات کو زبردستی تبدیل کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم ICIJ نے چین کی جیلوں میں بند قیدیوں سے متعلق سرکاری دستاویزات کو منظر عام پر لاتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ غیر مسلمانوں اور دیگر قیدیوں کے نظریات کو جبراً تبدیل کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے خاص رپورٹ۔ چینی حکومت کا غیر مسلمانوں پر ظلم، جیلوں میں بند مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ستم، غیر مسلمانوں کے خیالات کو زبردستی کیا جا رہا ہے تبدیل۔ ICIJ نے کھولی چین کی پول۔ چین کی انتہائی سیکیورٹی والے جیلوں کے نیٹ ورک میں ہزاروں غیر مسلمانوں کے زبردستی ذہنی خیالات تبدیل کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ چین کے جیلوں کے نیٹ ورک کے بارے میں لیک ہونے والی سرکاری دستاویزات میں ملنے والی تفصیلات سے پہلی بار اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ کس طرح چین منظم طریقے سے غیر مسلمانوں سمیت دیگر قیدیوں کی سوچ کو زبردستی تبدیل کر رہا ہے۔ یہ دستاویزات انویسٹیگیٹو صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم انٹرنیشنل کنسورٹیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے چائنا کیبلز کے نام سے شائع کی ہے۔ لیک ہونے والی سرکاری دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ چین کے سیانگکیانگ علاقے میں 1 کروڑ سے زائد غیر مسلمان ہیں، جہاں حراستی مراکز میں ہر کام چینی حکام کنٹرول کرتے ہیں۔ دستاویزات سے انکشاف ہوتا ہے کہ کس طرح ان مراکز میں قید ہر فرد کی زندگی کے ہر پہلو کی نگرانی کی جاتی ہے۔ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے قیدیوں کو ان جیلوں میں قید کر رکھا جاتا ہے اور ان کو کس طرح سزائیں دی جاتی ہیں۔ ان مراکز میں مقید افراد کے لیے جاگنے، حاضری لگانے، کپڑے دھونے، بیت الخلا جانے، گھریلو کام کاج کرنے، کھانے، مطالعہ کرنے، سونے کے اصول و ضوابط بنا دیے گئے ہیں اور ان کو سختی سے نافذ کیا جاتا ہے۔ سنکیانگ علاقے کے کیمپوں میں رکھے گئے افراد کو موبائل فون رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تحقیقات میں ایسے نئے شواہد ملے ہیں جو بیجنگ کے اس دعوے کو مسترد کرتا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں میں سنکیانگ میں بنائے جانے والے حراستی مراکز انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے رضاکارانہ طور پر تعلیم فراہم کرنے کے مقاصد کے لیے ہے۔ دستاویزات میں غیر ملکی شہریت رکھنے والے غیروں کو گرفتار کرنے اور بیرون ملک مقیم غیروں کا سراغ لگانے کی واضح ہدایت شامل ہے۔ دستاویزات میں یہ بھی کہا گیا کہ اس عالمی جال میں چین کے سفارت خانے اور قونصل خانے بھی ملوث ہیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ چین کی جانب سے شورش زدہ علاقے سنکیانگ کی غیر نسل کے لیے قائم کردہ تربیتی مراکز اصل میں انہیں سخت نگرانی میں مرکزی دھارے سے الگ تھلگ کرنے کے مراکز ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان حراستی مراکز میں 10 لاکھ افراد ہیں، جن میں زیادہ تر مسلم غیر برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو بغیر کسی مقدمے کے حراست میں رکھا گیا ہے۔ چین کی شی جن پنگ حکومت یہ دعوے کرتی رہی ہے کہ وہ دور دراز کے مغربی سنکیانگ خطے میں قائم ان مراکز میں رضاکارانہ طور پر تعلیم اور تربیت فراہم کرتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ خبر ایران سے ہے، جہاں پیٹرول کی قیمتوں کے خلاف ملک گیر احتجاج کے دوران پکڑے گئے کرائے کے ٹٹوؤں کو سخت ترین سزائیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ایران کی اسلامک ریولیوشنری گارڈز کارپوریشن کے سینئر کمانڈرز نے ملک کی عدلیہ پر زور دیا ہے کہ وہ پرتشدد احتجاج میں ملوث افراد کو سخت سے سخت سزائیں سنائے تاکہ سب کو عبرت حاصل ہو سکے۔ ایران کا کہنا ہے کہ احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے کرائے کے ٹٹوؤں نے کھلے عام اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے امریکی مشینری کے ایما پر احتجاج میں شرکت کی اور تشدد پھیلانے کا کام کیا۔ اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپوریشن کے سینئر کمانڈر ایڈمرل علی فداوی نے کہا کہ بیرونی ممالک کی شرح پر کرائے پر بھیجے گئے لوگوں نے ملک میں تشدد پھیلایا، جس کی وجہ سے کئی افراد کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا، جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچا۔ حکومتی مشینری کا کہنا ہے کہ عدالت ان کو ایسی کڑی سزا دے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی ملک کے امن کو بگاڑنے کی کوشش کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔
सिक्योरिटी फोर्सेज ने ईरान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अफराद के खिलाफ मुल्क में तशद्दुद फैलाने और इसे हवा देने के इल्जामात आयद किए गए हैं। चंद रोज कबल ईरान के सदर हसन रूहानी ने ईरान में हुए मुजाहरों और बदअमनी फैलाने के लिए अमेरिका और इसराइल को जिम्मेदार ठहराया था। हसन रूहानी ने ईरानी अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा था कि मुल्क के बाशऊर लोगों ने एक मरतबा फिर दुश्मन की साजिशों को नाकाम बना दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने भी मुजाहिरीन को मुल्क दुश्मन अनासिर बताया था। वाज़ेह रहे कि ईरान में 15 नवंबर को पेट्रोल की कीमतों में 50% इजाफे के ऐलान के बाद मुल्क के कई शहरों में पुरतशद्दुद एहतजाज हुए थे। एहतजाज के नतीजे में मुल्क को जानी व माली नुकसानात का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर इराक में जारी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दारुल हुकूमत बगदाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौजूदा हुकूमत से नाला हजारों अफराद सड़कों पर उतरे हुए हैं और हुकूमत की बेदखली तक मुजाहरे जारी रखने का अज़्म किए हुए हैं। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी है। हजारों अवाम इराक की आदिल अब्दुल मेहदी हुकूमत के खिलाफ गुज़िश्ता कई हफ्तों से सरापा एहतजाज हैं। बगदाद की रशीद स्ट्रीट में ताज़ा मुजाहरे के दौरान एहतजाजियों की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें हुई, जिनमें कई मुजाहिरीन जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। फोर्सेस ने मुजाहिरीन के खिलाफ रबड़ की गोलियों का भी इस्तेमाल किया। वहीं बसरा शहर में हजारों अफराद सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करते नजर आए। बरहम मुजाहिरीन ने सड़कों को जाम कर दिया और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। नासिरिया में भी मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए शहर के एक अहम पुल को ब्लॉक कर दिया। एहतजाजियों ने शहर में शियों के एक मरकज पर भी हमला कर दिया। जनूबी इराक में होने वाले मुजाहिरों और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताज़ा झड़पों में 6 मुजाहिरीन हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। जनूबी इराक के शहर नासिरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 3 मुजाहिरीन हलाक और 47 जख्मी हुए, जबकि बसरा के जनूबी इलाके उम्मे कसर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में 3 मुजाहिरीन हलाक और 50 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। ख्याल रहे कि इराक के मुख्तलिफ शहरों में हजारों अफराद मुल्क में फैली बदअमनी, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलतों के फुकदान के खिलाफ सड़कों पर सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं और आदिल अब्दुल मेहदी हुकूमत की बेदखली का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार से बेदखल हो और मुल्क के सियासी निज़ाम में तब्दीली लाई जाए, ताकि मुल्क के गरीब अवाम अपने बुनियादी हकूक हासिल कर सके और उन्हें बदअमनी से निजात हासिल हो सके। हालांकि इराक की आदिल अब्दुल मेहदी हुकूमत कुर्सी छोड़ने को तैयार नजर नहीं आ रही है। आदिल अब्दुल मेहदी ने गुज़श्ता साल ही इक़्तिदार संभाला है। उन्होंने मुल्क में मुतअद्दिद इस्लाहात और पैकेज का ऐलान किया था, ताहम मुजाहिरों की शिद्दत में कमी नहीं आ सकी। मौजूदा हुकूमत ने शदीद अवामी एहतजाज को देखते हुए हुकूमत ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन मुजाहिरीन ने हुकूमत की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। मुल्क में जारी एहतजाज में अब तक हलाकतों की तादाद 350 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि जख्मियों की तादाद हजारों में है। एहतजाज की वजह से मुल्क को बड़े पैमाने पर माली नुकसानात भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबर लबनान से है, जहां हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे लगातार जारी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आवाम मुल्क के मौजूदा सियासी निज़ाम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मुल्क के सियासी निज़ाम में तब्दीली लाई जाए, ताकि मुल्क को बदअमनी के दलदल से बाहर निकाला जा सके। लबनान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुल्क के कई शहरों में अवाम हुकूमत और मुल्क की अशराफिया के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में पीर को हिज़्बुल्लाह के हामियों और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें हुई। झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब हिज़्बुल्लाह के हामी दर्जनों की तादाद में गाड़ियों में सवार होकर आए और मुजाहिरीन पर हमला कर दिया। हिज़्बुल्लाह के हामियों ने लोहे के रॉड से एहतजाजियों को निशाना बनाया, जिसकी वजह से कई अफराद जख्मी हो गए। इस दौरान दोनों तरफ से घंटों तक
पथराव भी हुआ। वाज़ेह है कि लबनान में गुज़िश्ता 5 हफ्तों से हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुल्क में सियासी और माशी बेचैनी के बाइस हज़ारा अफराद मुजाहरे कर रहे हैं। चंद रोज़ कबल शदीद एहतजाज की वजह से मुल्क को दरपेश माशी और सियासी बहरान पर गौर करने के लिए बुलाया गया पार्लियामेंट का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया था। मुल्क गिर एहतजाज को देखते हुए वज़ीर आज़म साद अल हरीरी भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, लेकिन एहतजाज जारी रहा। यह हंगामे साद अल हरीरी की हुकूमत को मुल्क को दरपेश माशी बहरान से निमटने के लिए व्हाट्सएप कॉल पर फेसबुक समेत मुख्तलिफ टैक्स मुतारफ़ कराने के बाद शुरू हुए। मुजाहिरीन हुकूमत से मुजवज़ा टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन मुल्क की सियासी अशराफिया के ख़िलाफ़ अपनी बरहमी का इजहार कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि अरबाब इक़्तिदार मुल्क को दरपेश मौजूदा सियासी बहरान के लिए ज़िम्मेदार हैं। एहतजाजियों का कहना है कि वो दुनिया को अपने एहतजाज के तवस्सुस से बदउनवान हुक्मरानों के बारे में पैगाम देना चाहते हैं। मुल्क में जारी मुजाहरों की वजह से अब तक मुतअद्दिद अफराद हलाक जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा लबनान को एहतजाज की वजह से काफ़ी माली नुकसानात का भी सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चीन के खुसूसी इंतजामी इलाके हांगकांग के बल्दियाती इंतखाबात में जमहूरियत नवाज ग्रुप को शानदार कामयाबी हासिल हुई है। जिलाई कौंसिल की 452 नशिस्तों में से जमहूरियत नवाज ग्रुप को 350 सीटें हासिल हुई हैं। इस तरह जिलाई कौंसिल की 18 में से 17 सीटें इस ग्रुप के हिस्से में आई हैं। इन इंतखाबात में वोट डालने की शरह 71% रही है। इंतखाबात के नताइज को देखते हुए इंतजामी लीडर कैरी लिम ने कहा है कि वो अवामी राय को खुले जहन के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। We have a landslide victory coming from all the peoples of Hong Kong, and as a result, altogether we get more than 350 seats in the elections, and it is foreseeable that in the coming terms of the district council, we will be dominant in all the 18 district councils. So I urge all the new councillors from whatever parties, from whatever कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने फुकुशिमा के जलजले और सुनामी के मुतासरीन के लिए मजीद इमदाद की दरख्वास्त की है। पोप ने अपने जापान दौरे के मौके पर कहा कि मुतासरा खित्ते के शहरी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे इन्हें फरामोश कर दिया गया है। पोप फ्रांसिस ने कहा कि ये अफराद अभी तक आलूदा ज़मीन और ताबकारी के असरात के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पोप ने बयान टोक्यो में 2011 के सुनामी और जलजले के मुतासरीन से मुलाकात के बाद दिया। पोप ने कहा कि जापानी पादरियों ने जौहरी तवानाई के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया है। तो उधर पोप फ्रांसिस ने टोक्यो में सियासी लीडरों से कहा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम से जैसी तबाही हुई वैसी फिर इंसानी तारीख में कभी नहीं होनी चाहिए। पोप फ्रांसिस ने कहा कि दोनों शहरों में एटम बम की तबाही का सोचकर भी दिल कांप उठता है। उन्होंने अपने खिताब में माहौलियाती तबाही का भी जिक्र किया। वाज़ेह कि जापान के शहर नागासाकी और हिरोशिमा में ही सिर्फ दुनिया के वो शहर हैं जिन्हें अब तक एटमी हमलों का सामना करना पड़ा है। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका की जानिब से दूसरी आलमी जंग में एटम बम गिराया गया था, जिसमें यकदम 27,000 अफराद हलाक हो गए थे। इससे 2 दिन कबल 7 अगस्त को जापान के शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था, जिससे यकदम 78,000 और बाद में एटमी ताबकारी से 4 लाख के करीब अफराद हलाक हुए थे। Siguiendo los pasos de mis predecesores, también quiero implorar a Dios e invitar a todas las personas de buena voluntad a seguir impulsando y promoviendo todas las mediaciones necesarias de disuasión para que nunca más en la historia de la humanidad vuelva a ocurrir la destrucción generada por las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. शाम में क़याम अमन के लिए सीरियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की दूसरी मीटिंग अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर जिनेवा में हो रही है। इसका मकसद शाम के आइन में इस्लाहात लाना समेत
خانہ جنگی کے شکار ملک کو امن کی طرف واپس لانا ہے۔ شام میں اگرچہ سیرین کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کے اندر ابھی بھی کئی اختلافات پائے جاتے ہیں، تاہم ماہرین کا ماننا ہے کہ شام کے سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے فی الوقت اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ Although so many troubles, of course, so many problems between the both sides, or let's say the three sides, because they are just talking about three sides, and then these troubles, they carried them with them in the small committee, the small group that discussed the technical issues. So it should work because Syrian government wants to show all the world that the government is. خبر افغانستان سے ہے، جہاں کابل میں ایک بم حملے میں ایک شخص ہلاک جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی ایک گاڑی کو نشانہ بنا کر حملہ کیا گیا۔ حملہ کابل کے مصروف ترین سڑک پر ہوا جس میں گاڑی کو شدید نقصان پہنچا۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم طالبان اور اسلامک اسٹیٹ گروپ نے ماضی میں کابل میں ہوئے متعدد بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایسے میں شک کی سوئی ان کی جانب ہی جاتی ہے۔ دم شام بود، بیروبار سرک بسیار زیاد بود، موترها پشت ساعت بود، رابندیم از شام یک دفعه گرم شد و نمید یک سودا دکانداری ناروے حکومت نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک اسلام مخالف تنظیم سے تعلق رکھنے والے شخص نے ناروے کے کرسٹیان ساند شہر کے پر رونق علاقے میں پہلے ایک مجمع لگایا اور پھر لوگوں کے سامنے قرآن کریم کو نظر آتش کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا تھا۔ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کریم کو آتش زدگی سے بچانے کے لیے ایک نوجوان تیزی سے آگے بڑھا اور اسلام مخالف شخص کو قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے سے روک دیا۔ ناروے حکومت نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات روکنے کا حکم دیا ہے۔ ناروے پولیس کے چیف کا کہنا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی نفرت انگیز تقریر سے متعلق کرمنل کوڈ کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے اور دوبارہ بے حرمتی ہوئی تو پولیس اسے روکے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہر کسی کو اتنا ہی بولنا چاہیے کہ قوانین کی خلاف ورزی نہ ہو۔ قوانین کی خلاف ورزی ہوگی تو پولیس مداخلت کرے گی۔ ایسے واقعات سے انتقامی کارروائیوں کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ خیال ہے کہ گزشتہ دنوں ناروے میں جو کچھ ہوا اس کو لے کر دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ وکی لیکس ویب سائٹ کے بانی جولین اسانج کی جیل میں خراب صحت پر کئی ڈاکٹروں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کم از کم 60 ڈاکٹروں نے وکی لیکس کے بانی کی جیل میں خراب صحت کے تعلق سے ایک کھلا خط تحریر کیا ہے۔ اس خط میں ان کی صحت کو لاحق شدید خطرات کو بیان کیا گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے تحریر کیا ہے کہ جیل میں اسانج کی صحت خراب سے خراب تر ہو رہی ہے اور یہ ان کی زندگی کے لیے خطرناک صورتحال ہے۔ اسانج کو ضمانتی شرائط کی خلاف ورزی لندن کی ایک عدالت نے 50 ہفتوں کی سزا سنائی تھی اور وہ یہی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ان کی امریکہ کو حوالے کرنے کے مقدمے کی کارروائی اگلے سال فروری میں شروع ہوگی۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے زور آزمائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب نیو یارک کے سابق میئر مائیکل بلومبرگ نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی امریکی صدر بننے کی دوڑ کا حصہ بنیں گے۔ اس اعلان کے ساتھ وہ بھی ڈیموکریٹ پارٹی کے امیدواروں کی اس طویل فہرست کا حصہ بن گئے ہیں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ 77 سالہ بلومبرگ نے کہا ہے کہ میں صدر بننے کی دوڑ میں اس لیے شامل ہوا ہوں تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرا سکوں اور امریکہ کی اثر نو تعمیر کر سکوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم مزید 4 برس تک صدر ٹرمپ کے غیر محتاط اور غیر اخلاقی فیصلے برداشت نہیں کر سکتے۔ تقریباً $50 ارب کے مالک اور امریکہ کے امیر ترین افراد کی فہرست میں شامل بلومبرگ کے صدر بننے کی دوڑ میں شمولیت تقریباً اسے دلچسپ بنا دے گی۔ ڈیموکریٹک جماعت کی جانب سے پہلے ہی 17 امیدوار اگلے برس ٹرمپ کا مقابلہ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ زبان و ادب اور تہذیب و ثقافت کی بنیاد پر ہندوستان اور ایران کے قدیم رشتوں کو مزید مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ایران کے کلچرل کونسلر ڈاکٹر محمد علی ربانی نے لکھنؤ میں کیا۔
लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबे फारसी में ज़बान व अदब के फ़रोग़ और दीगर मंसूबों पर मबनी बातचीत में अली रब्बानी ने यह भी कहा कि हम ऐसे मुश्तरका प्रोग्राम शुरू करने के ख्वाहां हैं जिनसे फारसी ज़बान के फ़रोग़ को यकीनी बनाने के साथ दोनों ममालिक के रिश्तों को भी मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। ईरान और हिंदुस्तान के रिश्ते 700 साल से भी ज्यादा कदीम हैं। ये रिश्ते हमेशा खुशगवार और बेहतर रहे हैं। इसका बुनियादी सबब फारसी और हिंदवी ज़बान का इम्तिजाज है और यही मुश्तरका तहजीब दोनों मुल्कों को जोड़े रखती है। I think Persian language is not just a language, it's a part of the civilization, culture and the historical relation between two peoples, India and Iran, for more than 700 years ago. And it was formal language in India. And there are many Indian poems that have the book with the Persian language and they are also famous in the Iran, like Khosrow Dehlavi and Bidal also. फारसी सिर्फ एक ज़बान नहीं बल्कि एक तहजीब है और इसकी अपनी तारीखी और सकाफती अहमियत है। इसलिए लोगों को लिसानी और तहजीबी बुनियादों पर एक दूसरे के और करीब लाया जाए। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और मंसूबों पर गौर किया जा रहा है। मुश्तरका प्रोग्रामों के जरिए इन खाकों को हकीकत में तब्दील किया जाएगा, जिसके लिए प्रोफेसरान के आने जाने के सिलसिले के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे जिनके जरिए मकसद का हुसूल हो सके। We can invite some Iranian professors to come here. They have workshop, and also we can invite some professors from here. They go to the Iran for exchange program in the some university. They stay short course to learn more Persian. अली रब्बानी ने लखनऊ क़याम के दौरान इमाम बाड़ों समेत कई अहम मकामात का दौरा किया और कई अहम शख्सियात से मुलाकात भी की। लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबे फारसी को बेहतर बनाने और यहाँ फारसी ज़ुबान को जिंदा व ताबंदा रखने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा का इज्तिमाई दुआ के साथ इख्तिताम हुआ। मौलाना साद ने इज्तिमाई दुआ कराई। इस मौके पर मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। इज्तिमाई दुआ में लाखों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। इज्तिमाई दुआ के साथ तबलीगी इज्तिमा का इख्तिताम हुआ। अल्लाह हमारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। अल्लाह ईमान की हकीकत हमारे दिलों में रासिख फरमा। या अल्लाह दुनिया कामिलीन में हमको दाखिल फरमा। अल्लाह अपने वादों का यकीन दिलों में पैदा फरमा कर अल्लाह अपने अवामी पर साबित कदम फरमा। अल्लाह अपने मासूआ का यकीन उम्मत के दिलों से निकाल दे। अल्लाह उम्मत के अकायद को दुरुस्त फरमा दे। अल्लाह अपनी बात का यकीन उम्मत के दिलों में पैदा फरमा कर अल्लाह अपने मासूआ का यकीन उम्मत के दिलों से निकाल दे। अल्लाह एक एक फर्द उम्मत को अपने कलम का दाई बना दे। या अल्लाह उम्मत के अकायद को दूर फरमा। अल्लाह पूरे आलम से कुफ्र इल्हाद को खत्म फरमा। अल्लाह पूरे आलम से शिर्क व बिदअत को खत्म फरमा। अल्लाह उम्मत के अकायद को दूर फरमा। अल्लाह उम्मत के तमाम तबकात को या अल्लाह ये कलिमतुल्लाह को कायम फरमा। अल्लाह एक एक फर्द उम्मत को अपने कलमे का दाई बना दे। या अल्लाह दावत के जरिए से अल्लाह कलमे का इखलास। खबर पाकिस्तान से है, जहां इस्लामाबाद में मुल्क का सबसे बड़ा फेस्टिवल चल रहा है। इस फेस्टिवल में पाकिस्तान भर से फनकार शिरकत करते हैं और अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। इस फेस्टिवल को मकामी तौर पर लोक मेले के नाम से जाना जाता है। मेला खाने, म्यूजिक और बाजार से सजा हुआ है। लोग इस मेले से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हम फ़र्ज़ करें बलूचिस्तान नहीं जा सकते,
सिंध नहीं जा सकते। वो सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। तो मेला मिलन का नाम है, जब बंदा एक दूसरे को मिल लेता है तो वो समझ ले कि खुशी हो जाती है, वो मेले में शुमार हो जाता है। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, इससे आपकी बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होती है और एक दूसरे का कल्चर के बारे में पता चलता है। और ये चीज़ें जो हमारी जनरेशन को नहीं अब तक समझ में आई, जैसे ये कल्चर है, ये इसका चरखे का या कुम्हार का या ये जो पेंटिंग लाइव कर रहे हैं, ये चीज़ें बच्चों को कैसे पता चलेगी।